A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 11th accountancy, and this is the last video of the very important chapter of part B of class 11th accountancy, that is a financial statement of sole proprietorship without adjustment. After completing this chapter, let's we move to the next chapter, that is a financial statement of sole proprietorship with adjustment. So in this video, we see that how sole proprietorship prepared its trading account and find its gross profit, and how they will prepare the profit and loss account and find the net profit and net loss of the business. And thereafter, we find out the balance sheet, procedure of preparation of the balance sheet, how sole proprietor prepared its balance sheet. ओके सो आई होप आज का टॉपिक पूरी तरह से क्लियर होगा कि आज के इस क्वेश्चन में वी टेक द वन क्वेश्चन फ्रॉम द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दैट इज द क्वेश्चन नंबर 21 एंड दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी शेयर्ड बाय मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप। और इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, एक ही क्वेश्चन का उसी का बैलेंस शीट बनाएंगे, इसी का बैलेंस शीट बनाएंगे उसी क्वेश्चन के हेल्प से। ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, फिर बैलेंस शीट में लायबिलिटीज एंड एसेट्स का टोटल फाइंड आउट करेंगे एंड वी फाइंड दैट कि बैलेंस शीट का जो टोटल होता है वो इक्वल आता है। ओके सो लेट स्टार्ट द टुडेज जर्नी एंड इन द नेक्स्ट वीडियो मैं अभी से आपको बता दूं कि इन द नेक्स्ट वीडियो वी स्टार्ट द न्यू चैप्टर दैट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ sole proprietor with adjustment. Okay, so let's start the today's topic. The next question is question number 21. Okay, and this question is already shared by me in the WhatsApp group. So the question number 21 is, from the following balances prepare third financial statement as at 31st March 2016. So आपको कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21 में कि यू हैव टू प्रिपेयर द फाइनल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट बनाइए। किसका फाइनल अकाउंट बनाइए? नेम है मिस्टर एक्स का। कब बनाइए? 31st March 2016 को। एंड व्हाट आर द इंफॉर्मेशन, प्लीज watch carefully. Opening stock 30,620, purchase 1,64,800, sales 5,12,000, return debit, return debit matlab yes it is a sales return 8,000, return credit that is a purchase return 4,800, factory rent 36,000, custom duty 23,000, coal gas water 12,000, wages and salary 73,200, discount debit 15,000, commission credit 2,400, bad debts 11,700, bad debts recovered 4,000, apprentice premium 9,600, productive expenses 5,200, unproductive expenses 10,000, carriage 17,400, capital 5 lakh, drawing 96,000, debtor 1,14,000, creditor 28,000, depreciation 8,400, charity 1,000, cash balance 8,920, bank balance 8,000, bank charges 360, establishment expense 7,200, plant 84,000, leasehold building 3 lakh, goodwill 40,000, patent 20,000, trademark 10,000, loan credit 50,000, and interest on loan is the 6,000. Okay, and the additional information is the value of closing stock on 31st March 2016 was 50,800. So इस क्वेश्चन में आपको फाइनल अकाउंट बनाना है। सो फर्स्टली यू हैव टू प्रिपेयर दी ट्रेडिंग अकाउंट, देयर आफ्टर यू हैव टू प्रिपेयर दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड एट लास्ट वी हैव टू प्रिपेयर दी बैलेंस शीट। सो पहले हम लोग बना लेते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यू नो वेरी वेल, हम कंबाइन बनाते हैं चीजों को। So we write down the trading and profit and loss account of Mr. X for the year ended, किस ईयर बनाना है आपको? For the year ended 31st March 2016। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि क्वेश्चन इज वेरी बिग, सो इसको हम पहले क्या करते हैं, दो सेक्शन में बांट लेते हैं और दोनों सेक्शन में हम लोग सेपरेटली क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग इधर ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और अगर स्पेस इधर बढ़ जाता है तो फिर राइट डाउन द दिस साइड। ओके, सो फर्स्टली वी राइट डाउन द हेडिंग दैट इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द डेट इज फॉर द year ended 31st March 2016
16। ओके, ये मेरा समझ लीजिए 2 पेजेस हैं, बुक के 2 पेज होते हैं एज लाइक इट इज अ 2 पेजेस, द पेज नंबर 1 एंड पेज नंबर 2. सो प्लीज डू नॉट कंफ्यूज अबाउट इट. पर्टिकुलर्स अमाउंट आप पूरा लिखोगे. So firstly, you write down the heading trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2016. The first information we have to write down in the trading account. सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, उसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक. सो टू ओपनिंग स्टॉक 30,620. नेक्स्ट इज परचेज 1,64,800, जिसमें से हम लोग माइनस करेंगे दैट इज अ परचेज रिटर्न. ओके, उसके बाद हम लोग क्या माइनस करेंगे? परचेज रिटर्न. एंड परचेज रिटर्न की वैल्यू कितनी दी हुई है? द वैल्यू ऑफ द परचेज रिटर्न इज 4,800. सो द नेक्स्ट नेट परचेज इज 1,60,000. द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन which are related to the trading account, that is the sales. कुछ चीजें तो इसमें क्लियर हैं कि ये चीजें रिकॉर्ड होंगी ही होंगी, तो उनको लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है. सो बाय सेल्स, द वैल्यू ऑफ द सेल्स इज 5,12,000 minus sales return, that is 8,000. so the net sales will be of 5,04,000. और उसके बाद क्रेडिट में लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक. What is the amount of closing stock? That is 50,800. And thereafter we write down all the direct expenses in the debit side of the trading account. कौन से expenses हम लोग debit side में record करते हैं? All the direct expenses. And this is the solution of question number 21. Confuse मत होइएगा. Okay. So direct expense कौन कौन से हैं? Please note down. Please note down in the that is a factory rent 36,000. Factory rent 36,000. Thereafter custom duty 23,000. Custom duty 23,000. Coal, gas, water 12,000. Coal, gas and water 12,000. Wages and salary 73,200. Wages and salary 73,200. Next, discount commission is not a part of trading account. Bad debts recovered, no. Apprenticeship premium, no. Productive expense, that is a 5,200. Productive expenses, that is 5,200. Next, unproductive wages not. Carriage is a part of trading expense. That is a direct expense, that is of 17,400. So you can see that question कितना बड़ा है. पहले हमने क्या किया? जो पर्टिकुलर चीजें थी, ओपनिंग प्लस परचेज, ओपनिंग परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक लिख लिया. एंड देयर आफ्टर वी राइट डाउन ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस व्हिच आर डेबिटेड इन द ट्रेडिंग अकाउंट. सो capital drawing, data, creditor, depreciation, it is not a part of this. Establishment expense 7,200, it is a part of operating expense. So establishment expense, the amount of establishment expense is 7,200. The next one is a plant leasehold patent loan, it is not a part of trading account. So you know very well, हमने क्या लिख दिया? सब कुछ नोट डाउन कर दिया. किसमें नोट डाउन कर दिया? ट्रेडिंग के डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया. Okay, so I have a one doubt कि it is a trading expense is a part of trading account or PL account. So we find that that is establishment expense is a part of PL account, so it will not record in the debit side of the trading account. अब आप देख लिया आपने कि हमने क्या किया? ट्रेडिंग अकाउंट इधर बना लिया फर्स्ट पेज पे, और फिर आप उसका टोटल करिए. और ऐसा नहीं है सेकंड पेज, अगर आप दोनों पेज पे कॉमन होता, मैं एक ही पेज पे इसको कर देता हूं, तो आप कंफ्यूज मत होइए. ओके, सो यहां आप टोटल कर लीजिए जहां आपको कन्वीनियंट लगे, और जो बैलेंस आए इट विल बी नोन एज द ग्रॉस प्रॉफिट. कैसे टोटल करोगे? दोनों को ऐड करोगे, दैट इज 55,04,000 प्लस 50,800
5,04,000 plus 50,800 and the total is 5,54,800 and thereafter इधर भी टोटल आना चाहिए 5,54,800 जो डिफरेंस आ रहा है आप उसको ऐड कर लो डेबिट साइड में टोटल करके कितना आ रहा है वी फाइंड इट दैट इज 30,620 116 1,60,000 36,000 23,000 12,000 73,200 5,200 and 17,400. So the debit side is 3,57,420. डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 3,57,420 एंड उसको आप उसमें से माइनस कर दो 5,54,800 में से. So your gross profit is 1,97,380. It is correct. So you can see that हमने इन सबको ऐड किया, ऐड करके फिर इसको ऐड किया क्योंकि इधर की वैल्यू ज्यादा थी. यू नो वेरी वेल क्रेडिट की टोटल आया था 5,54,800 whereas the credit total is debit total is 3,57,420. तो दोनों का डिफरेंस कितना है 1,97,380 and this is your gross profit. ओके अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को आपने फाइंड आउट कर लिया. उसके बाद क्या करोगे ग्रॉस प्रॉफिट के बाद इमीडिएटली यू हैव टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहीं से दैट इज बाई ग्रॉस प्रॉफिट. अगर मैं नेक्स्ट पेज से करता तो आप लोग भी फिर से नेक्स्ट पेज से ही करने लगते. नहीं इमीडिएटली 1,97,380 लिखा ग्रॉस प्रॉफिट. ये देखो ग्रॉस प्रॉफिट है. यू नो वेरी वेल द ग्रॉस प्रॉफिट calculated from the trading account will be posted in the credit side of the profit and loss account. Immediately अपने profit and loss account प्रिपेयर कर लिया. अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ. आप समझ में आ गया. और इसमें हम लोग कौन से एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं. वी रिकॉर्ड ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ही रिकॉर्ड करते हैं. इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो एक्सपेंसेस बच गए हैं लाइक डिस्काउंट डेबिट कमीशन क्रेडिट. सो डिस्काउंट मैं एक एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. दैट इज अ डिस्काउंट वैल्यू इज 15,000 एंड बाई कमीशन क्रेडिट 2,400. कमीशन क्रेडिट मींस कमीशन मिला होगा. एंड देयर आफ्टर अब मैं दूसरे पेज पे मूव ऑन करता हूं. ओके द सेकेंड पेज इज फॉर्मेट वही सेम पर्टिकुलर्स अमाउंट. फिर से आपको लिखने की जरूरत नहीं है बस लाइन चीज देनी है और ये वाली चीज है फिर से यहाँ से कंटिन्यू करनी. That is a bad debts. So bad debts will be a bad debts के लिए यहाँ जगह है लिख सकते हैं हम लोग. The value of the bad debts is 11,700 and thereafter यहीं पे मान लो पेज खत्म हो गया तो आप नेक्स्ट पेज पे जब जाओगे तो स्टार्टिंग करोगे यहीं से बाई बैड डेब्ट्स रिकवर्ड. ओके बाई बैड डेब्ट्स रिकवर्ड that is 4,000. Apprenticeship premium, it is a premium. Apprenticeship premium is a 9,600. Productive expense is a part of trading account whereas an unproductive expense जो unproductive value दी हुई है unproductive expense it is a part of PL account that is 10,000. Carriage लिख चुका गया है. कैपिटल ड्रॉइंग डेटर क्रेडिटर depreciation will be right on the debit side of the profit and loss account that is 8,400 as well as charity. और आप देख रहे हो मैं हर एक आइटम के आगे डेबिट के आगे प्रीफिक्स यूज कर रहा हूं टू एंड क्रेडिट के आगे प्रीफिक्स यूज हो रहा है बाई. ये भी आपको ध्यान रखना है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फॉरगेट अबाउट दिस और भूल जाते हैं फिर मार्क्स कटते हैं एग्जामिनेशन में. So वो भी आपको ध्यान रखना है. The charity amount is 1,000, unproductive 10,000, and depreciation is 8,400. Cash balance, bank charges is 360. Sorry for that. Okay, so charity. After the charity, we write down the bank charges 360. After that, establishment expense
7,200 and उसके बाद interest on loan is a debit because you take the loan, so interest on loan is a expense, that is 6,000. तो मैंने क्वेश्चन दिखाया है, क्वेश्चन में कौन कौन सी चीजें ट्रेडिंग में रिकॉर्ड होंगी, कौन कौन सी बीएल में रिकॉर्ड होंगी. इट इज टोटली डिपेंड ऑन द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द एक्सपेंस, दैट इज द डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस. Direct expense will be recorded in the debit side of the trading account, whereas the indirect expense will be recorded in the debit side of the profit and loss account, as well as any income apart from sales. Sales को छोड़ के बाकी सारी income, जैसे you can see that's commission, bad debts recovered, it is a part of your other income. That's why it will be shown in the credit side of the profit and loss account. Okay, so अब हम क्या करेंगे सर, ऐड करेंगे, क्योंकि मैंने सारी चीजें रिकॉर्ड कर दी. अब ऐड करते वक्त क्या ऐड करेंगे, क्रेडिट में 1 2 3 इतनी चीजें ऐड करेंगे. क्रेडिट में क्या क्या है, दैट इज 1,97,380, दैट इज द ग्रॉस प्रॉफिट. अदर इनकम हुई 2,400 की एंड 4,000 की, तो टोटल इनकम इज 2,03,780 विथ ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट को मिलाकर हमें इतनी इनकम हो गई. अब उसमें से हमने कौन कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंस बियर कर लिए, दैट इज डिस्काउंट 15,000, 11,700, बैड डेब्ट्स 9,600, अप्रेंटिस प्रीमियम 10,000, अनप्रोडक्टिव depreciation 8,400, 1,000 is a charity, 360 is a bank charges, 7,200 is a establishment expense, and interest on capital, interest on loan is a 6,000. so the debit total 69,260. डेबिट में कितना टोटल आ रहा है, दैट इज 69,260. ओके, अब इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर लो. 2,03,760 माइनस 69,260, दैट इज नेट प्रॉफिट इज 1,34,520 एंड दिस इज योर नेट प्रॉफिट 2,03,780. Here it is a little bit mistake is there. Apprenticeship premium is not an expense, it is an income, other income of the sole proprietor. Apprenticeship premium जो होता है वो expense नहीं होता, it is an income which are received by the sole proprietor. So the value is apprenticeship premium is 9,600. इसे हम ऐड नहीं करेंगे, सॉरी एक्सपेंस की तरह यूज नहीं करेंगे, इट विल बी पोस्टेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो दैट्स व्हाई द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड इज 2,13,380. okay, the credit side total and the debit side total will be a 2,13,380 minus 69,260 पहले टोटल आया था यहाँ पे, बट उसमें से 9,600 हमें नहीं इंक्लूड करना है. सो द टोटल ऑफ डेबिट साइड इज 59,660. सो डेबिट का टोटल आया 59,660 एंड क्रेडिट का टोटल आया 2,30,380. अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, एंड द आंसर ऑफ द नेट प्रॉफिट विल बी 1,53,720. सो इस बात को याद रखना, कभी कभी मुझसे कभी कभी आपसे मिस्टेक हो जाएगी. जैसे आपने देखा कि थोड़ी बहुत कंसंट्रेशन जहां हटा, वैसे ही आपने जो डेबिट में लिखना है वो क्रेडिट में लिख दिया और क्रेडिट वाला डेबिट में लिख दिया. तो ये सारी मिस्टेक्स ना हो. ओके, सो अप्रेंटिसशिप प्रीमियम इज इनकम, सो दैट्स व्हाई इट विल बी क्रेडिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्लीज अपने दिमाग में इन सब चीजों को रख लीजिए. एंड एट लास्ट वी फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट. So you can see that how we will prepare the trading account and profit and loss account of sole proprietorship. We discuss the balance sheet of sole proprietorship of this question. How we will prepare the balance sheet of this question, we discuss it. Before the preparation of the balance sheet of the sole proprietorship, firstly we prepare the format of the balance sheet.
The format of the balance sheet of sole proprietorship are as follows. Firstly, we write down the balance sheet of Mr. X, and when it was prepared on 31st March 2016. So as at 31st March 2016, बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड एट अ पर्टिकुलर डेट. दैट्स वाई हम लोग सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर एक्स एज द 31st March 2016. Thereafter we prepare the format of the balance sheet. The format of the balance sheet are as follows. You know very well what is the format of the balance sheet. In the right hand side we write down the liabilities of the firm, of the business, and the right hand side we write down the assets. Okay, so left hand side is the liability and right hand side is the assets. So one by one, you can know very well when we are talking about the question number 21. So we find that opening stock, purchase, sales, return, factory rent, return, debit and credit, as well as custom duty, coal, gas, power, wages and salary, discount, commission, bad debts recovered, apprenticeship premium, productive expenses, unproductive expenses, carriage. All the things are the part of the trading and profit and loss account. When we are talking about the capital, you know very well, when we are talking about the capital, so capital will be write down in the liability side of the balance sheet of sole proprietor. What is the amount of capital? That is a 5 lakh. और इसमें हम लोग ऐड करते हैं that is a net profit. Net profit is calculated with the help of the profit and loss account. Yes, and profit and loss account की help से profit कितना था? 1,53,720. अभी आपने देखा था नेट प्रॉफिट कितना आया था हमारा 1,53,720. इट विल बी एडेड टू द कैपिटल एंड ड्राइंग शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम देयर. You know very well drawing is a personal expense, so it will be deducted from the capital. And next one is a if there any kind of the personal expenses, और यहाँ पे कोई भी personal expense नहीं है, so that's the closing capital is 5 lakh plus 1,53,750 minus 96,000. So we can see that the 4,04,000 and 1,53,720. So the closing capital will be a 5,57,720. सर कैलकुलेशन कैसे किया? 5 लाख में से 96,000 माइनस किया, सो वी फाइंड इट 4,04,000 और उसमें ऐड कर दिया नेट प्रॉफिट दैट इज 1,53,720. ओके, now after the written on the capital, after that we write down the non-current liability, and non-current liability is loan. Loan is a non-current liability, so the what is the amount of loan? That is a amount of loan is 50,000. And after that we write down all the current liabilities of the business. Current liabilities like a creditors, it was placed on the liability side of the balance sheet. Creditors कितने हैं? 28,000 rupees. And thereafter we write down the और उसके अलावा कोई भी लाइबिलिटीज हमें तो नहीं दिख रही. आप भी क्वेश्चन ध्यान से देखो. एसेट साइड पे हम लोग देखते हैं, तो एसेट साइड पे कौन कौन से आइटम्स हम राइट डाउन करेंगे. द फर्स्ट वन इज अ करंट एसेट्स, एंड द करंट एसेट्स आर द फर्स्ट करंट एसेट्स इज डेटर एंड कैश. कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस. कैश बैलेंस इज 8,920 and bank balance will be a, according to the question, the bank balance is a 8,000. ओके, सो कैश बैलेंस लिख लिया, बैंक बैलेंस लिख लिया. उसके बाद हम लोग लिखेंगे डेटर 1,14,000. ओके, डेटर के बाद वी राइट डाउन दी टेंजिबल फिक्स एसेट्स. यू नो वेरी वेल इन्वेस्टमेंट इसमें है नहीं, so tangible fixed assets, yes, first one is as closing stock. You know very well closing stock is given as an adjustment, so it will be write down at two places. First trading account credit side and number second in the balance sheet asset side. ओके, ये करंट एसेट्स होती है. क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 50,800. आप देखो क्वेश्चन को ध्यान से, आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा. ओके, एंड आफ्टर दैट वी राइट डाउन दी प्लांट, लीज होल्ड बिल्डिंग, प्लांट,
बेसिकली हम लोग को कैसे बनाना होता है ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग के आइटम्स को हटा दिया, फिर बचा उसमें से कुछ आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट डाउन कर दिया, एंड रेस्ट ऑफ द आइटम विल बी रिटन डाउन द लायबिलिटीज एंड एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। यानी बैलेंस शीट में हम उसे लिखते हैं जो बाकी बच गया, जो चीजें लिख चुकी गई है उसको दोबारा नहीं लिखते। हाँ, अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर एज एन एडजस्टमेंट को इंफॉर्मेशन है लाइक क्लोजिंग स्टॉक, यू कैन सी दैट। सो इसका इफेक्ट हमेशा दो जगह पड़ेगा, एक ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखेंगे हम लोग, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। और रही बात प्लांट, तो प्लांट इज अ टेंजिबल फिक्स एसेट्स 84,000। leasehold building is also tangible assets 3 lakh rupees, and as well as goodwill and patent and trademark, ये तीनों के तीनों एसेट्स कैसे हैं, दीज आर द इनटेंजिबल एसेट्स। सो इनको हम लोग सबसे लास्ट में लिखते हैं, यू नो वेरी वेल। आइडल फॉर्म क्या होता है, अकॉर्डिंग टू मी द आइडल फॉर्म ऑफ द बैलेंस शीट इज लायबिलिटी को हमें किस फॉर्म में लिखना चाहिए, इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस, एंड एसेट साइड को हमें किस फॉर्म में लिखना चाहिए, इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। So that's why we write on the current assets, there are the non-current assets, tangible and intangible. What is the amount of goodwill? 40, patent 20, and trademark rupees 10,000. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सर अब कोई आइटम्स नहीं बचे, आप एक बार देख लो कोई ऐसी चीज है जो बच गई हो रिकॉर्ड करने के लिए। अकॉर्डिंग टू मी वी राइट डाउन ऑल द आइटम्स इन द बैलेंस शीट, liability side as well as in the asset side. ओके, लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे बोथ साइड, दोनों साइड को हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे वन बाई वन। सो लायबिलिटी साइड में कौन कौन से आइटम्स है, यू कैन सी दैट कैपिटल, लोन एंड क्रेडिटर। सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल, दैट इज 5,57,720, it is a closing capital, 50,000 is a loan and 28,000 is a creditor. So the total of the liability side is 6,35,720. When we are talking about the asset side, so you can see that asset side में cash है, bank है, debtor है, closing stock है, plant है, leasehold building है, goodwill है, patent and trademark है। ये किस order में हमने write down किया है, that is in the order of liquidity. Yes, तो इनको add करते हैं, 8,920 plus 8,000 plus 1,14,000 plus 550,800 plus 84,000 plus 3 lakh plus 40,000, 20,000 and 10,000, and we find that the total of the liability asset side is 6,35,720, and we can see that the both side of the total of the both side of the balance sheet is equal. बैलेंस शीट का दोनों साइड क्या है, इक्वल है। और हम लोगों ने सबसे पहले क्या बनाया था, ट्रेडिंग अकाउंट, उससे क्या फाइंड आउट किया, ग्रॉस प्रॉफिट। विद द हेल्प ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट वी फाइंड वी प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हेल्प से वी फाइंड द नेट प्रॉफिट। उस नेट प्रॉफिट को हम लोग कहाँ ऐड किया, कैपिटल में, क्योंकि अगर जब तक हमें नेट प्रॉफिट नहीं पता होती तब तक हम लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट का बना ही नहीं पाते, एसेट जरूर बना पाते, तो हमारी बैलेंस शीट कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट रहती। सो नेट प्रॉफिट आया कहां से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, उसको हम लोगों ने कैपिटल में ऐड किया और ड्राइंग को माइनस किया, सो वी फाइंड द क्लोजिंग कैपिटल। लोन एंड क्रेडिटर्स सो गिवन इन द क्वेश्चन, लोन इज अ नॉन करंट लायबिलिटी वेयर इज द क्रेडिटर इज द करंट लायबिलिटीज। और अगर हम एसेट साइड में देखें तो कैश, बैंक, डेटर एंड क्लोजिंग स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ द करंट एसेट्स, वेयर इज अ leasehold building, leasehold building and plant is a part of the tangible fixed assets, whereas patent and trademark goodwill is a part of the intangible fixed assets. उसको एक ऑर्डर में लिखा, दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। और आफ्टर दैट जब हमने देख लिया कि सारे आइटम्स, वी रिकॉर्ड ऑल द आइटम्स गिवन इन द क्वेश्चन, और फिर उसको हमने टोटल कर दिया। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये क्लोजिंग स्टॉक की है, क्योंकि बिकॉज ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज अ एडजस्टमेंट, इट इज गिवन एज द क्वेश्चन इन द एडजस्टमेंट के तरह दिया हुआ है। यानी आप देखोगे क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, ट्रायल बैलेंस के अंदर है, सॉरी बाहर है, इट इज गिवन एज आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, दैट्स व्हाई इट विल बी रिटन एट द टू प्लेसेस, फर्स्ट क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट एसेट साइड। याद रखना ये चीज, मैं आपको कहीं ना कहीं इस चीज को लिखवा भी देता हूं कि क्लोजिंग स्टॉक अगर विद इन अ ट्रायल बैलेंस हो, ट्रायल बैलेंस के अंदर हो, तो सिचुएशन में सिर्फ एक जगह लिखते हैं, दैट इज बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ओनली वन इफेक्ट।
बट अगर आउटसाइड ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस के बाहर है क्लोजिंग स्टॉक, तो उस सिचुएशन में उसका इफेक्ट दो जगह पड़ता है, फर्स्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ये बात आपको याद रखनी है और इसको कहीं ना कहीं कॉपी में नोट डाउन कर लो। ओके, so I hope today we cleared a very important topic and the last topic of uh, chapter number 21, that is a financial statement of sole proprietorship. And in this chapter, in the whole chapter, we can see that how we will prepare the trading account, how we will prepare the profit and loss account, and how we will prepare the balance sheet of the sole proprietorship. But the most important announcement for you, जो next chapter है वो भी यही है, प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। बट दोनों में डिफरेंस बेसिकली ये है कि जो अभी हम लोग करेंटली चैप्टर पढ़ रहे थे, दिस चैप्टर इज फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एडजस्टमेंट, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था। बट इन द नेक्स्ट चैप्टर we discuss the financial statement of sole proprietorship with adjustment. This question is preparation of financial statement is without adjustment, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं थी। बट नेक्स्ट चैप्टर में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ रीडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाना है। ओके, सो आई होप टुडे वी क्लियर्ड ऑल द टॉपिक्स वेरी इजी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, दैट इज अ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप विथ एडजस्टमेंट। टेक केयर।